I heard the word Avesham so उस time पे, so it appears very subtly. So that is where I realized, okay, there is a double meaning to this word as well. So Avesham is Josh, and also this thing that okay. Godfather नहीं देखी तूने? वो तो इसको आर्ट लगा होगा. केसरिया तेरा इश्क है मेरा. This guy is making us fall in love with the film even more. Welcome to Desi Deep Dive. Almost, I don't know, we are at 962 subscribers, so climbing towards the big 1000. So Yeah, thank you guys and for subscribing. We are really appreciating all the comments which are coming our way, and I know we haven't responded to each and everything. Things have been very hectic these past few weeks, so that is why we are not yeah, able to address every single comment. But yeah, we'll do once we find the time. And so shout out to Prayas is the user who keeps commenting on every single Prayas. Yes, his name is Prayas. Prayas, right? Yeah, so shout out to you, man. Thank you for watching all of our videos. And So, we but yeah, will we will be doing Kaiti soon. Soon. yeah, we will. Kaidi and Yeah. all the LCU Yeah. movies, because that is primarily why we also included it in the poll when we put it out. Yeah. So technically in Instagram, Avesham came second. Yes. In the YouTube poll, Avesham won, right? So if you add up Avesham 1, because Lucky Bhaskar was, I think, last when it comes to the YouTube polls. So if you add it up, Okay. Avesham 1, so I think technically it makes sense for us to do Avesham first. We will end up doing some of like Fafa's films, like there is one where he plays a psycho. Um, I don't remember exactly what it's called. Shami, I think it's called Shami. Okay. Yeah, so there are a lot of iconic Fafa's films that I have now discovered. Now that I've seen Avesham, this is the first Fafa-led film that I've seen. Yeah. Me too. This is the fully Fafa-led film which I have seen. So and goes to show that this guy can literally carry a 2.5 hour movies, without breaking a sweat. Yeah, yeah, So yeah, so I was actually very impressed, and for me, I just finished watching the movie. Just about done. Like it's just been half an hour I since have I seen finished it three watching it. times now. In the past Yeah, 2 days, I've seen this film yeah. 3 times. You have more experience with this movie, so I let you go ahead with it. Uh, in terms of like density of the plot, I didn't find much as to what the plot is trying to say, because the first time Avisham was recommended to us in our comment section, that person sort of saw it as like a comment on alpha males, as to how this one person, Ranga, is sort of a deconstruction of this entire alpha male character, who is actually very emotional, but who is putting up that stoic image where he's very cool. Okay, but I personally did not see it as that. Yeah, even I did not see it like that. I mean, for the BC, okay, I guess we can argue that that's because of Fahad Fasil. He's not built like it. Exactly. Yeah, Fafa is very different in terms of even the quirks that he brings to the character. They come from a very different place for him as well. Yeah, So, yeah. it would be impossible to discuss Avesham without just talking about Fafa and his performance and overall thoughts about how he is the one who gives everything. The energy he brings Yeah, is next level. The energy to every yeah, shot, his screen presence. The first time I actually saw what he was capable of was yeah. that shot in Pushpa. I've talked about that in our Pushpa review. In that, he is about to get on the truck. He gets on the truck with the Okay, others, you're right? talking about you're talking about the opening of the second movie, right? Where he's disguised. Where he's disguised, right? Yeah, And I saw him just look like this, and I was like, this guy's eyes, this guy's yeah, eyes yeah, yeah. do all the speaking. Okay, and I was not aware that this is actually a thing with Fahd Fazil. Okay, and now that I've seen Avesham and I've researched more into it, Fahd Fazil's eyes have a whole different fan base.
Okay. Oh, okay. Okay. Yeah, because he acts a lot through his eyes, and Yeah. I've noticed this, that he does this a lot. Now, look, if I look at you, I will turn my face here, okay, and I look at you straight, right? Yeah, yeah, yeah. Fahad Fazal will do both. He'll look at you, but again out of the corner of his eye. Again, okay, he'll take it to both extremes, and he does that every time in the film, when he's like trying to intimidate somebody. Okay, yeah, and that shot of his that became a meme, where with the pillar and this, that is his character. That is a Yeah, yeah, good yeah. summation of his character. This is him. Yeah. Yeah. Yeah, Yeah. it's the way they have done it is very new. And again, I will be talking about a lot of scene constructions in the film, uh, uh, that sort of elevate the film to a next level. So again, the writer director plus Fahd Fazil, all of them have taken, because this is not just, like we said, Fafa's this thing, but the film is actually very well written. Yeah. It's not the perfect film that people, I think, have been saying. No We film have is I, perfect. Okay, no, so I I'll mean, okay, yeah. I'll just let me just interrupt you on that thought. We are all humans, we are all imperfect, and nobody is capable of writing a perfect story, and nobody has ever written a perfect story, and nobody will ever write a perfect story. I can challenge you, I can leave it as an open challenge. You bring me any story, I can easily poke holes in it. I mean, mostly I have this argument in two prominent reels. One is whenever something associated with Pushpa. So people come and then start comparing कि अरे इंसेप्शन करो अबे क्या इंसेप्शन देखो तुम. Hell, first of all, please stop this obsession with Christopher Nolan. He is not the messiah of cinema. वो भी perfect नहीं है. He has this one particular style, and we've also talked about it in multiple podcasts as well. Christopher Nolan is obsessed with time. For him, it's like he will never do something linear. And just because something is complicated, it doesn't mean that it is clever or it is better. So, Inception, those people who keep coming and giving us the example that, oh, Inception. इंसेप्शन इज नॉट द मेट्रिक फॉर द परफेक्ट सिनेमा. ऐसा नहीं है कि इंसेप्शन दुनिया की सबसे बेस्ट मूवी है, नहीं है. स्टॉप वर्शिपिंग क्रिस्टोफर नोलन. ही इज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग. Yes, he has given brilliant movies, no doubt. Nobody is denying that. But that doesn't mean that nobody else is capable of reaching his heights or something like that. किसी को ऐसे pedestal में मत रखो. That is all I'm trying to say. Okay. The second movie which people come and argue us about is Marco. First of all, after watching Avesham, I'm like, तुम्हारे पास आवेशम है. मेरे को ना रिस्पेक्ट जा रहा है उन लोगों पे जो लोग मार्को को आके डिफेंड करते हैं. Yeah. I'm even astounded by the fact that you guys yourselves are not criticizing Marco. Yes. That is a big thing. I was like, it's a very obviously flawed film. Okay, you can see what is wrong with the film. Exactly. हमने अभी तक हमने after Marco we watched 2 Malayalam movies. Both of them are infinitely superior than Marco in terms of writing. Marco only has action. तो मैं खाली action का क्या करूं? Since most of the hate which we are getting is on the extras का reel. मार्को के extras के reel में जो तूने बोल दिया था ना कि अरे extras को ऐसे ऐसे क्यों करवा रहा है. इस मूवी में extras देख कितने अच्छे हैं. Yeah. जो पूरे जो उसके रंगा के जितने भी वो गूंस हैं, जो उसके जो आदमी होते हैं, look how good they are. Whenever we compare two things, let's say I say that, oh, Avesham is for me Munna Bhai. Okay. Yeah. Is Yeah. Mallu Munna Bhai. It doesn't mean I am demeaning the film. I'm not saying it is like Munna Bhai. You are saying it is like मुन्ना भाई, but that doesn't mean we are saying कि अरे ये मूवी बिल्कुल मुन्ना भाई से उठा ली है या उसकी कॉपी है. नहीं. Yeah, exactly. That is not what you are saying. I'm just saying there are some things that I find similar. That's it. Vibes मिल रही है तुझे, मुन्ना भाई की Yeah, vibes yeah, मिल yeah, रही हैं. yeah. तो you brought up मुन्ना भाई. For me, this movie is like Three Idiots. Okay. Yeah. क्योंकि वो तीनों इडियट ही तो होते हैं. वो 3 इडियट्स ही हैं. वो जो तेरे मेन कैरेक्टर्स हैं, एक क्या है वो बीबी, और दूसरा होता है अज्जू, और तीसरा का नाम क्या, शंतन, क्या क्या Shantan. हाँ,
शांतनी नाम होता है शायद, वही. दिस एक्चुअली रिमाइंडेड मी ऑफ माय ओन कॉलेज डेज. The hostel हाँ, scenes are so accurate, the way how people live in hostels. These are, yeah, this is all like properly thought out. वो प्रॉपरली थॉट आउट भी है, और ऊपर से पक्का ऐसा होगा कि दिस गाय हैज एक्सपीरियंस्ड इट, व्हिच इज व्हाई ही वाज एबल टू कैप्चर द एसेंस ऑफ इट. If you watch it multiple times, you can see that there is a lot going on underneath. This is one of those massy films that actually work because of the writing is really good and the acting is superior to, I think, anything I've seen recently. Yeah, of course. And not just the acting, not just by Fahad Fasil alone, but by all the cast members. Yeah, there will be a separate. There will definitely be a separate segment on. I think his name is Amban. Amban, Amban Amban. is one of my favorite वो characters of all time. yeah, mine too. वही ना, he's basically the circuit. And exactly, and then one of the most emotional scenes in this film, again a great example of visual storytelling, is with Amban only. I think I was more touched by that one scene than anything else in the film. द क्लाइमैक्स में जिसमें वो पीछे वो बाकी सब भाग जाते हैं और वो वहीं पे रहता है. Yes, हाँ, वो समझ गया था मैं, वो तो दिख रहा था. दिख रहा था ना कि that. yeah. Oh, it's one of those things. Again, it's such a great way to just show it instead of just telling it, right? Yeah. वो शॉट भी इस तरह से लिया गया है ना कि इतना इम्पैक्टफुल शॉट है वो, बिकॉज ही लीव्स. बात करते हैं उसके बारे में, बात करते अगर अभी बात कर लिया ना तो फिर वो, क्योंकि उसमें है विजुअल के बारे में बात करना है मुझे, हाउ इट्स फ्रेम्ड एंड हाउ क्या क्या चीजें हैं, तो वो बात करेंगे. रिमेंबर दैट फॉर मी दिस मूवी वाज अ गुड film with a lot of subtext to it. I appreciated the fact that the depth which was provided to us was not only limited to Fahad Fasil's character. Yes, of course, he had the largest piece of the pie. Visually also, it's like वो उसका जब बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं कि he also has that biggest cake. So उसी का केक होता है, वो बहुत बड़ा पाई है. So it's like the core characters also have equal shares. And that is also visually conveyed through how वो काट के सबको दे रहा होता है. तो it's like everything ties together through that cake, and that cake is Fahad Fasil, और सब उसको उसका पीस ले रहे हैं, and it's equally shared. Basically Fahad Fasil is sharing his love with everyone. That is the character ना, वही तो उसका कैरेक्टर है. तो वो विजुअली उन लोगों ने उस केक वाले से दिखा दिया, and this movie is very much like that. एक वो मूवी को ना एलिवेट कर दिया था उसने मेरे लिए, बिकॉज फॉर द फर्स्ट आई थिंक आई वाज व्हाइल आई वाज वाचिंग इट, आई वाज एक्चुअली I paused and checked when Fahad Fasil's entry actually happens, and it sometimes happens around 28 minutes, 28 to 29 minutes के अराउंड आता है. तो उसके बाद से मूवी का ना एक वो मीटर है एकदम उठ जाता है मूवी का मीटर. सो वही मैं देख रहा था कि दैट इज द काइंड ऑफ राइटिंग, परफॉर्मेंस एंड the screen presence. Basically, a lot of people use the word screen presence when it comes to mainstream movies, and this is the kind of movie where the screen presence is complementing and enhancing the writing and direction and everything. Before that, the movie was on a different meter. The first half an hour or so, that when we were watching these three characters, it was on a different meter, and for me, it was a very ordinary movie till that point. Even though I was engaged, I was responding to it, but मेरे लिए वो बहुत ही उस टाइम तक ऐसा था कि ठीक है, जो भी चल रहा है, I'm invested in it. I want to see what happens. I want to see कि ये कहाँ जाने वाला है, because there are a lot of paths this story could have taken. Yeah. But the arrival of that character Ranga completely changes the story and completely changes the dynamics. Okay, I just want to kind of quickly, like if you could Google it. क्या कर रहा है? Getting a little bit more comfortable. मैं वही देख रहा था. There's a new setup, that's why. It's a new setup ना. Okay, बाप रे. ये ऐसे पब्लिक ऐसे मत करा कर, हम डीमोनेटाइज हो जाएंगे मोनेटाइजेशन से पहले. मैं एल्गोरिदम अलग तरह से थोड़ा ट्रिगर कर. तो ऐसे मत कर, ऐसे ट्रिगर करने के चक्कर में ट्रिगर मत कर दे किसी को. हाँ. तो What were you asking?
हाँ, सो आई वाज सेइंग दैट कि आवेशम का क्विकली मीनिंग सर्च करियो. आई जस्ट हैव टू मेक श्योर I think I आई एम have राइट. I have googled it, but it was not very. No, Uh, no, just because I'll tell you something. I'll yeah, I have to. I couldn't charge Google up, it. charge up. अंदर से उसको बहुत जोश है या जैसे चार जब बोला ना. एंड आई थिंक देर इज अ डायलॉग इन द मूवी जब व्हेन दे आर डिसाइडिंग कि लेट्स जस्ट स्विच ऑफ ऑल आवर फोन्स एंड स्टार्ट घोस्टिंग हिम. Yes. Hmm. उस टाइम पे वो बोलते हैं उसमें यू हैवंट सीन इट इन मलयालम राइट. No. I mean, I have seen it in Malayalam once, but much अच्छा, यू later. हैव सीन इट इन मलयालम. ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि उसमें ना वो डायलॉग होता है कि उसको हमारा आवेशम थोड़ी चाहिए. मतलब इट्स लाइक उसको हमारी ज़रूरत थोड़ी है. दैट इज द लाइन. सो आई गेस आवेशम ऑल्सो हैज दैट मीनिंग विच इज ऑल्सो इफ दैट मीनिंग इज ऑल्सो ट्रू देन दैट ऑल्सो मेक सेंस. Hmm. बिकॉज जोश तो है ही आवेशम, उसका जोश तो लिटरल मीनिंग है उसका. बट Yeah. उसको उसको जरूरत भी है इन तीनों की बिकॉज ही जेन्युइनली लव्स देम. Hmm. लेट मी क्विकली गो थ्रू इट बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ. मे बी आई बिकॉज आई ओनली वॉच इट वंस आई वुड हैव मेड इट. मैं फिर से आई वुड हैव मेड श्योर. हाँ, हाँ, ये रहा, मिल गया. എടാ അയാൾക്ക് നമ്മളെ ആവശ്യമില്ല. എടാ അയാൾക്ക് നമ്മളെ ആവശ്യമില്ല. हाँ, हाँ, ये बोलता है. सो एट 2 hour 1 minute and around 40 seconds he says that dialogue. അയാൾക്ക് നമ്മുടെ ആവേശമില്ല ऐसे करके उसने बोला है. तो I mean I may be butchering the language. Apologies to those mallus who are watching, but so the subtitles are like he doesn't need us. And I heard the word avesham so उस time पे, so it appears very subtly. So that is where I realized, okay, there is a double meaning to this word as well. So avesham is josh and also this thing that okay, the need, Need. because it's need. सो बिकॉज ये जो तीन थ्री इडियट्स हैं इनको भी नीड है इसकी पहले, और उसको भी नीड है इन तीनों की फॉर डिफरेंट रीजंस. Yeah. एंड इट्स फिटिंग वाई देर आर थ्री कैरेक्टर्स बिकॉज जो तेरा रंगा भी है उसको भी इससे पहले 3 जनों से लगाव होता है. Hmm. जिन तीनों ने मम्मी, उसको, मम्मी, वो उसका भाई और वो रेड्डी, Reddy, Guru. तीनों के लिए वो प्यार का भाव रखा होता है उसने. बट तीनों ने उसका प्यार ठुकरा दिया होता है. वो एक थीम है. एंड देन आवेशम मीनिंग भी कि उसका नीड. सो देर इज अ डबल मीनिंग टू इट. एंड देन रंगा ऑल्सो हैज डबल 2 faces टू हिम. This is literally flower and fire here also. Here also. अरे ये वही है. मैं एक्चुअली आई एम थिंकिंग कि पुष्पा के लिए बेस्ट एंटागनिस्ट यही है, रंगा. Ranga. एंड पुष्पा और रंगा को क्या है ना, पुष्पा और रंगा पहले एक दूसरे को भिड़ेंगे और फिर एंड में बहुत अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं अगर साथ में आ Actually. गए तो. Yeah, they have the क्योंकि same पुष्पा, issues, na. दे हैव द सेम इश्यूज एग्जैक्टली. तो अगर पुष्पा ने उसको एक बार ही कुछ बोल दिया ना, भाई भाई बना के उसको सेंटिमेंट में उसको इसको कर दिया ना, ये तो भाई दोनों मस्त भाई बन जाएंगे. तो मेरा ओवरऑल थॉट सही है कि दिस मूवी हैज अ लॉट टू ऑफर एंड आई वेरी मच एंजॉयड वॉचिंग दिस. बट एट द सेम टाइम आई फील कि थोड़ा ज़्यादा लंबा है मेरे हिसाब से. दैट इज द ओनली फीलिंग विच आई गॉट वॉज मे बी this could have been a 2 hour movie instead of a 2.5 hour movie. Okay. I mean, I'm not saying कि जो आधा घंटा एक्स्ट्रा किया है it's not fun. Of course this movie is fun. Fahad Fasil saves it for me through his tremendous performance and his screen presence and whatever situations is coming in the movie. मेरे लिए ऐसा है कि हाँ, फहद फासिल कुछ ना कुछ करके इस सीन का एक मैजिक क्रिएट कर देगा, विच इज वॉट वॉज हैपनिंग इन every particular subsequent sequence. Even though a lot of things were predictable, Fahad Fasil's energy is what draws you in as a viewer. That is the overall thought. So let's just get into Ranga. Before we get into Anka, I want to ask you one thing, Vignesh. हाँ, बोल ना. Are you happy? Very happy. I'm very happy. Very happy. Very happy. Bye. Man, क्या बोले यार रंगा के बारे में यार. Such an intense character. पूकी बंदा है एकदम. इंटेंस तो है
पूकी है। हाँ हाँ, और जेन अल्फा टर्म्स यूज कर रहा है तू यार। कोई बात नहीं, अगर बीबी की माँ नहीं होती ना तो खत्म होते वो तीनों के तीनों। I think this was me, but I saw that at one point Ranga saw himself in BB, यस, which is why he only connects with BB. So the consistency is so good. If you just see Ranga at every point, he prefers BB. he connects, yeah, of course, that is true. He connects with BB and he feels the most betrayed by BB also. Yes, and it had to be BB who betrayed him. और कोई नहीं हाँ. होना चाहिए था. BB has to be the one who betrayed him. Then I was like, okay, her point में he is siding with BB even when they are playing charades. He is like BB मेरी टीम में, right? And I noticed जब वो केक काटता है ना, the first piece वो First BB को ही piece is खिलाता है. BB. And like हाँ, okay, consistency बहुत अच्छी है यहाँ पे. फर्स्ट पीस बीबी को खिलाता है, और जब वो उस बार में बैठे होते हैं, जब वो बीबी से टकराता है, वही सीधा बोतल फेंक के मारता है उसको। हाँ, तो it has to बीबी be के लिए BB ना। जाके लड़ाई करता है, और फिर उसके बाद जब बीबी उसको बोलता है कि आज नहीं पीटना, कल कॉलेज में सबके सामने पीटना है, तो वो And he रुकता agrees, है, yeah. ही एग्रीज। तो वो हर टाइम पे और फिर And जब think वो about this ना, कुट्टी भी बीबी कुट्टी को थप्पड़ मारता है, बीबी को ही हाँ, थप्पड़ मारेगा वो. बीबी को मारता है, उसको बोला रुक मैं आता हूँ करके, फिर वो भाग के जाके खत्म करता है। तो वो बहुत दैट इज द थिंग। एंड बीबी ऑल्सो इज समवन हु शोन टू बी लाइक ही एक्चुअली फील्स लाइक रंगास यंगर ब्रदर, बिकॉज जिस तरीके से ही इज ऑल्सो इम्बाइबिंग हिज क्वालिटीज विद इन हिम। Yeah, it does not get intense for him, for BB, till the mother comes into the equation and then is like, fine, let's take revenge on these people. Yes, and okay, which is why when the movie actually starts, the opening shot is these two, BB and his mother, BB and his mother. वहीं से दिखता है ये। And the connection is very well established with Fafa's entry, is that दो cigarette connect हो रहे हैं. और वो वही है ना, वो उसी के पास आके बीबी से ही सिगरेट लेता है, फिर वो जाता है। Yeah. तो दैट इज एक्चुअली विजुअली वहीं से समझ में आ गया कि ये है। क्योंकि तू देखेगा तो जो तेरा बीबी है, जब वो सिगरेट लेता भी है उससे, तो बीबी उसको ज्यादा कुछ बोलता नहीं है। वो जो तेरा दूसरा अज्जू है ना, वही सबसे बड़ा वही है। आई मीन अज्जू, आई फील ही इज द सबसे बड़ा हरामखोर वही है। हाँ, उसी की वजह से सारी बकचोदी हुई। मतलब अगर वो चुपचाप से जब वो पिट गए थे शांत हो जाता, तो कॉलेज आराम से निकाल लेते। वो जो सीनियर्स हैं वो चले जाते। सीनियर्स का क्या है, वो एग्जाम दे के निकल लेते वो लोग। yeah, which is why ये I thought that narratively they would have to go in that direction कि Ranga intercepts when Kutti and his gang are sort of beating them up, and it is a natural thing that is happening, but they go the opposite direction. It's like, okay, fine, now I understand narratively where they are going, because they call Kutti कि आ जा अभी तो तेरे को देख लेंगे, and they abuse him, and then he comes, right, staging the whole thing. I felt like, okay, fine, this is where the film is going, and वहाँ पे for me took a turn कि हाँ अब मैं समझ रहा हूँ कि कहाँ जा रही है फिर। ओके, सो आई विल टेल यू समथिंग एल्स। फॉर मी, मेरे लिए पता क्या लग रहा था, देयर वाज अ रेड हेरिंग फॉर मी व्हिच वाज सेट अप। आई विल गिव यू एन एग्जांपल एज वेल, व्हिच इज व्हाई आई थॉट द मूवी इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन। मेरे लिए ऐसा लग रहा था कि जो तेरा रंगा है, मुझे लग रहा था कि रंगा का छोटा भाई कुट्टी है। Oh, दैट इज व्हाट आई थॉट। आई थॉट कि ये लोग कुट्टी को मारने के लिए रंगा से दोस्ती कर रहे हैं, और ये रंगा की पूरी गैंग इनके साथ मस्त एकदम चिल मार रही है। रंगा भी इनके साथ बहुत क्लोज हो रहा है। बट फाइनली व्हेन दे आर गोइंग टू से कि कुट्टी ने हमें मारा, तो फिर रंगा का वो टर्न होगा और फिर वो बोलेगा मेरे भाई को मारने के लिए तुम लोग आते हो करके, वो इनके पीछे पड़ेगा। दैट इज वेयर आई थॉट द मूवी वाज गोइंग, एंड आई टेल यू व्हाई। बिकॉज आफ्टर दे बिफ्रेंड रंगा, देर इज अ सीन बार में जाने के बाद, जब वो तीनों चल के जा रहे होते हैं, कुट्टी कम्स इन दैट मारुति वैन एंड वो बोलता है कि अंदर चढ़ जाए। एंड वो जब चढ़ रहा होता है तो अंदर जो गाना बज रहा होता है ना, वो वही गाना बज रहा होता है, Illuminati, Illuminati yes. वाला। hmm. So That's why. that is the red herring, and fittingly the van was red. वो जो क्या? मारुति वैन है, that was a red van. So मेरे को No, वही लग it's रहा था maybe that is it's sort of symbolism ना, वो
Okay, there are two gangs. One is a red gang, one is a green gang. It's because Fafa ki gaadi, Ranga ki gaadi is green. Oh, okay, okay, yeah. Okay. बट मेरे लिए ये था कि आवेशम मीन्स जोश ना, तो दैट इज व्हाई आई थॉट कि आवेशम ऑल्सो रेड इज एसोसिएटेड विद जोश. सो मेरे लिए वही लगा था कि मे बी ये लाल कलर की जो वैन है ना, ये उसका कुछ हिंट है. Okay, got it. एंड सिंस जो तेरा कुट्टी है ही इज अ सीनियर, मुझे ऐसा लग रहा था कि क्योंकि ओके कुट्टी का कैरेक्टर मैंने थोड़ा एनालाइज किया था, बिकॉज एक तो सबसे पहले क्या है कि कुट्टी द नेम इटसेल्फ इज अ हिंट, मींस स्मॉल. Oh, एंड वो जो है वो हाइट में छोटा है. उसकी इनसिक्योरिटी है, लाइक व्हाई ही इज रनिंग दिस गैंग, वो दिखता है कि वो ही इज रनिंग दिस गैंग बिकॉज वो छोटा है हाइट में. एंड ही फील्स वेरी जेलस बाय द फैक्ट, एंड उसको पता है कि द ओनली वे ही कैन कंट्रोल पीपल and force them to respect him is if he becomes the most fearful person ever. And how does he strike fear? He does it through forming this gang. yeah. And how he treats these three people कि उनको रात भर बुला के पूरा पीट के. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक तो जितने भी गैंग मेंबर्स हैं इसके, जो भी इसके हैं, इन सबको भी इसने मेरे को लग रहा है ऐसे ही रिक्रूट किया है, सबको पीट के फिर अगले दिन से पाल पोस के उसको अपने इसमें घुसा लिया. दैट इज हाउ आई फील ही रिक्रूट्स देम. दैट इज हिज थिंग. एंड ही इज द वन हु इज सीरियसली गोइंग एंड हिटिंग देम रिपीटेडली. Yeah. बाकी के लोग क्या है, उसके कहने पे मार रहे होते हैं. वो जो बड़ा सा आदमी आता है ना, बोलता है कि बॉल पास कर. Yeah. सो उसको इंटरेस्ट नहीं है इनको मारने में. Hmm. ओनली कुट्टी इज द वन हुज, बिकॉज उसका ईगो सबसे ज्यादा इन लोगों ने हर्ट किया था. Kutti is the Kutti. There are a lot of parallels between how Kutti operates and how Ranga operates. या सो विच इज व्हाई आई फेल्ट कि शायद कुट्टी जो है इसका छोटा भाई है. दैट इज द नेम ना, कुट्टी छोटा. दैट इज वेयर आई फेल्ट द मूवी वाज गोइंग टू गो, बट देन दे वेंट अनदर रूट. I saw that. I was like, okay, so this guy has such a fragile ego. Okay, and then parallel to that, this guy Ranga, when he asks for the lighter, BB very rudely says नहीं है मेरे पास. Okay, but he's like, fine, कोई बात नहीं. He doesn't have an ego like that. तो वो बोला Yeah. ठीक है मैं इससे कर लूँगा. हाँ. Okay, that is where I saw the parallels. Okay, fine. I didn't think that these guys were related. I just thought that there are going to be a lot of parallels in how they are operating. And then I saw that red car and the green car. I was like, okay, fine. This is very clearly Yeah, two very so separate I- gangs. So exactly. So you were able to differentiate it due to the cars colors. मैं वो नोटिस नहीं कर पाया. मेरे लिए वो दूसरा ट्रैक, मैं दूसरे लेंस से देख रहा, तो मेरे को लगा रेड है आवेशम है तो आवेशम, जोश है तो जोश और रेड को थोड़ा एसोसिएट कर सकते हो. तो मेरे को लग रहा था कि दैट इज वेयर द स्टोरी इज गोइंग. सो इंटरेस्टिंग कि उन लोगों ने, मे बी इट वाज डन इंटेंशनली, मे बी, आई डोंट नो, मे बी द राइटर्स वांटेड अस टू थिंक इन दैट वे. सो बट इट इज आई मीन इट डजंट रूइन द एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि क्या है ना कि कभी कभी क्या होता है कि एक्सपेक्टिंग अ स्टोरी टू गो इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, एंड व्हेन इट डजंट गो इन दैट डायरेक्शन यू फील कि अरे ये क्या हुआ सडनली. आई डिड नॉट फील दैट. मेरे लिए ऐसा था कि ठीक है. I don't know. Do you agree with this theory of mine? I think Kutti and his gang, they are sort of paying the dean, who is Ashish Vidyarthi, okay, to never. नहीं, वो तो नया है ना, वो तो नया आया है ना, नया वो तो आया था नया क्या वो? आता है. हाँ, जैसे कि हाँ. नया ईडी आया ऐसा बोले थे वो. नया आया है. अबे तूने 3 बारी मूवी देखी, क्या कर रहा है? हाँ हाँ. So I was like, I thought that these people, they sort of deal with money because they are never flagged as like red flags कि okay हाँ, ये वो गैंग तो- खराब है. अबे वो तो क्या, वो तो दैट इज काइंड ऑफ, आई थिंक दैट इज हाईलाइटिंग द हिपोक्रेसी ऑफ द Yeah. मैनेजमेंट. No, कि- I'll tell you where I flagged it. Okay, in the one of the first scenes where orientation जब होता है ना बच्चों का, उसमें there is a board. ठीक है, वो बोर्ड में वो रूल्स लिखे होते हैं, एंड आउट ऑफ लाइक अगर 5-6 रूल लिखे हो ना, 4 of them are about payments. इट Okay. मेक्स मी फील कि भाई कॉलेज को बहुत पैसा चाहिए. like किसी को तो- भी ले लेंगे. वो तो लग ही रहा है, वो तो दिख ही रहा है. वो तो प्राइवेट कॉलेज है ना, प्राइवेट, यूजुअली साउथ इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस का यही हाल होता है. Okay. And there are a lot of references to like languages. हाँ, तो वो तो कन्नड़ा में बात कर रहे होते हैं मोस्टली.
हाँ, and I've heard some people say that the way Ranga is speaking Malayalam also, it has a slight accent to it because he's not हो uh, yeah, because he lives in Bangalore. या हाँ, तो इतने सालों से था वो बैंगलोर में, तो इसलिए उसको तो आ गया होगा ना, तो वो स्लैंग पिकअप कर लिया होगा. सो आई मीन आई वाज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई इट, क्योंकि मैं मलयालम तो नहीं समझता और ना ही मैं कन्नड़ा समझता हूँ. मैं कन्नड़ा भी नहीं समझता, बट आई वाज एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू लैंग्वेजेस, बिकॉज कन्नड़ा का एक अलग टोनालिटी होता है और मलयालम का एक अलग टोनालिटी होता है, विच आई वॉज एबल टू डिफरेंशिएट कि हाँ ये मलयालम बात कर रहा है और ये कन्नड़ा बात कर रहा है. बट आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. सबटाइटल्स के बिना तो मैं समझ नहीं सकता. Okay, okay. तो दैट इज़ वाई आई नीडेड सबटाइटल्स. बट या वो चीज़ तो है कि बैंगलोर में हो रहा है. सो द गुड थिंग इज दे वर एक्चुअली लाइक मेंटेनिंग द लैंग्वेज एक्यूरेसी, एंड ऑफ कोर्स दे केप्ट गोइंग विद दैट स्टीरियोटाइप. नहीं नहीं, हिंदी नहीं, हिंदी नहीं. हम कैरेक्टर की बात कर रहे थे, तो रंगा के कैरेक्टराइजेशन के बारे में अगर कुछ बात करेंगे, उसका कोर इज ही इज लुकिंग फॉर, वो बता ही देता है. आई मीन वो आके बता ही देता है ना, व्हेन ही इज सेइंग कि कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं अकेला होता हूँ तो मेरे साथ बात करने का कोई नहीं है. सब लोग बस मेरे पैसे और मेरे कनेक्शन और उसके वजह से ही आते हैं. कोई भी Yeah. मेरे लिए नहीं आता. सब लोग मेरा इस्तेमाल करके चले जाते हैं, वैसे करके वो ही जस्ट वॉइसेस हिज ओपिनियंस आउट. सो ही इज जस्ट लुकिंग फॉर अ फ्रेंड बेसिकली. Yeah, I have a theory is that the reason that he is so energetic and the reason he is so quirky um, is sort of an overcompensation because he I think he got off on violence and now he Yeah. has to curb that क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है मम्मी को कि मैं वायलेंस से दूर भाग जाऊँ, पैसिफिस्ट बन जाऊँगा मैं. ओके, एंड दैट इज मेकिंग हिम रिएक्ट दिस वे कि वो अलग तरह से क्वर्की बन गया है बिकॉज वो टावल में डांस करता है ना. आई सी कि वो किसी अलग तरह से आउटलेट्स उसके खुलते जा रहे हैं. ऑल दीज थिंग्स, हिज एनर्जी, द वे ही डील्स विद पीपल, हिज एक्सप्रेशंस, ऑल ऑफ दैट इज एन आउटलेट to just compensate कि वो he is not able to be violent. That is the only thing. ओके, सो वो तो चल प्रॉमिस का तो तू बता ही रहा है, बट एंड तक तो दे प्ले इट एज दो कि जो तेरा रंगा है वो फट्टू है, वो और उसके बारे में जो कुछ भी चीज़ें बोला है दैट इज़ नॉट ट्रू. अपनी फील्ड में अपने अंडर कोई काम कर रहा है, राइट? हाँ, एंड देन हाउ वी आर कॉन्स्टेंटली लाइक नहीं ऐसे नहीं करने का, ऐसे कर. ओके, रंगा इज डूइंग दैट ड्यूरिंग द फाइट सीन्स वेर ही इज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट, बट ही इज गिविंग देम इंस्ट्रक्शंस कि नहीं ऐसे कर, ये कर. बिकॉज फर्स्ट टाइम आई वाज लाइक क्योंकि ये फट्टू है, सेकंड आई वाज लाइक नो, दिस इज हाउ ही वुड हैव डन इट. एंड he also says कि वो दो लोग खड़े होते हैं ना, पोज मार रहे थे कि पोज क्या मार रहा है जाके फाइट कर. वही वो उन दोनों का कैरेक्टराइजेशन में उन लोगों ने अच्छा दिखाया था ना. दे वर एक्चुअली द एग्जाम्पल्स की ये दोनों बेसिकली दैट ऑल्सो हिंटेड द फैक्ट, वो जो दो हिंदी वाले होते हैं जो चले जाते हैं, आई गेस दे लीव बिकॉज दे वर स्केयर्ड फॉर देयर लाइफ. आई मीन दे डिड नॉट एक्सपैंड ऑन व्हाई दे लेफ्ट, बट या उसमें एक तरीके से दिखाते हैं कि वो चले गए और ये उनको ढूंढ रहे हैं. मैं एक सेकंड के लिए समझा था कि अभी जस्ट पिछले सीन में तो तुम दोनों इसके लिए लड़ रहे थे, एंड देन वी सॉ किस तरीके से रंगा ऑल्सो केम बैक टू सेव यू गाइस. apparently I've heard that there are a lot of scenes in the film that were cut, so I think वहाँ पे कोई explanation होगा because हो सकता we है. can see them running away during the birthday पे वो भाग रहे होते हैं वो दोनों बच्चे. हाँ, बट वही मैं समझा नहीं क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वो पिछले सीन में तो एस्टैब्लिश कर दिया था ना कि दे वर रेडी टू रिस्क देयर लाइफ फॉर हिम. सो आई हैव नो आइडिया व्हाई दे डिड इट. आई मीन ठीक है, यू कैन मे बी कनेक्ट द डॉट्स इन दैट वे कि शायद ऐसा होगा कि दे वर स्केयर्ड कि उनकी ज़िंदगी चली जाएगी, बिकॉज ही वॉज शायद उस तरीके से वो दिखाते हैं ना कि वो रियर व्यू मिरर में देखता है, तो वो देखता है कि वो डिस्टर्ब्ड है, एंड देन ही एग्जिट्स एंड देन गोज बैक टू सेव हिज फ्रेंड. बट देन फिर रंगा अराइव्स एंड वो कह रहा है क्या है, पागल हो गया क्या? क्या खतरनाक सीन है यार वो. रंगा जस्ट स्लोली गोइंग एज लाइक
हाँ। पागल आदमी। तो उसी में समझ में आ गया था ये हिला हुआ है, फिर उसके बाद सीधा गाड़ी से वो ठोक के पूरा एकदम ऐसा लगता है बॉलिंग पिंस की तरह वो गया सीधा से इधर उधर उड़ा दिया उनको, और फिर उसको बोला अंदर लेके आओ। एंड ओके, एक हिपोक्रेसी दिखती है उसमें रंगा की। बेसिकली जो रीजनिंग उसकी दी थी कि रंगा ना, जब वो उन दोनों हिंदी वालों को पकड़ के इधर बैठा के रखता है, फिर वो बोलता है ना कि तुम्हारा मन किया, तुमने मेरा सारा पैसा वैसा खर्चा, मेरे साथ घूमे, मेरी गाड़ी में बैठे, अभी तुम्हारा मन किया तुम मेरे को छोड़ के चले गए। सो द हिपोक्रेसी इज दैट वो भी तो रेड्डी को ऐसे ही छोड़ के जाता है। या उसने पहले माँ के चक्कर में गैंग छोड़ा, बट फिर माँ ने उसको छोड़ दिया, तो इसलिए उसने गैंग शायद चालू कर लिया, शायद वैसा कुछ है। मे बी, या एंड बिकॉज स्टिल ही कीप्स हिज प्रॉमिस ना एटलीस्ट. maybe okay, maybe I guess that is why he did not go back to working with Reddy, because with Reddy he would have had to be the muscle, he would have had to. या एंड वो इसलिए उसने नया गैंग शुरू कर लिया ताकि वो जितना भी लड़ाई झगड़ा है वो नहीं करना पड़े, उसके गैंग वालों से करवाए। सो आई गेस दैट इज व्हाट इट वाज। या pretty much. He loves people unconditionally, but he expects them to show him the same kind of love which he's kind of showering to them. There are also a few things that give away other parts of his character. I think there are times where you see that that Ranga is very confident in the way he's doing things, so that sort of translates into other things as well. When we play charades, okay, when one thing is not working, we immediately change our approach. He doesn't. वो उसी पे बैठा हुआ था। हाँ, that also shows us कि ये character actually कैसे सोचता है. He's like, मैं सही हूँ, तुम लोग गलत हो, तुम लोग फुद्दू हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है. वो बेस्ट कैरेक्टर तो होती है, वो बगल में वो बंदी बैठी होती है, बोलती है कि भाई जितने मलयालम मूवीज है सब बता, सारे बता रही है वो एक एक करके। फाइनली शी कम्स अराइव्स एट दैट छोटा मुंबई। In the dubbed version, it's a mixture of Malayalam films and Hindi films. अच्छा, ओके, बिकॉज मैं वही सोच रहा था कि आई वांटेड टू आस्क यू, बिकॉज आई रिमेंबर यू सॉ इट इन हिंदी, सो मुझे वही पूछना था कि यार ये डमसराज वाला सीन इन लोगों ने कैसे वर्क किया होगा। Yeah, it's a mixture. At one point she says Padmavat because it's a sword, na. पद्मावत, हाँ, ओके। सो बेसिकली इफ यू थिंक अबाउट इट, वो जो जिस तरीके से वो एक्टिंग कर रहा था ना, वो स्वॉर्ड को उठा के, सो नोबडी वुड हैव गेस्ड कि वो छोटा बताना चाह रहा है। अगर छोटा उसको बताना था तो छोटे के लिए ऐसे दिखा के ऐसे दिखा देता छोटा, और बाय, क्योंकि बाय तो अच्छा था, बाय समझ गया, But he's so बाकी तो वो समझ में invested. नहीं आ- Like वो ऐसे भी नहीं करता है. He actually moves like ऐसे. हाँ वही, ऐसे जा रहा है तो These सही small है। things make Ranga so good, and this is Fafa. Fafa is doing all of this. And another quirky thing about तेरा रंगा is that when that particular scene comes, जब वो जो अज्जू बीबी को बोलता है ना तू जाके उससे लाइटर मांग, वो बैठ के वो रील देख रहा होता है और वो पीछे से लाइटर मांगता है, तो ऐसे लाइटर वो बिना देखे पकड़ा देता है, फिर वो एकदम से मुड़ता है तो बोलता है पहचाना पहचाना, मतलब जो एक्साइटमेंट उसको दिखानी थी ये दिखा रहा है। वो सीन पूरा अलग से सेगमेंट है. That one scene. I Okay, have ठीक है। noted. This is a great example of how to write a scene. वो scene अलग से करेंगे. There's one small thing, एक बीच के वो निकाल देते, just a funny thing. Kenny Sebastian जो comedian है ना, he had a set on how Malayalis will buy anything once you put a coconut tree somewhere. Okay. ओके Okay. ओके, BK hostel का logo is coconut. अच्छा। I was laughing when I saw नहीं that. तो okay, I did not notice that, but I understand. Okay, I understand why it would have been funny. Yeah, because see, I have no insight into that culture, right? And when Kenny did that, because Kenny is from that culture only, Yeah. right? So Kenny ने पूरा set बनाया हुआ है कि if you are selling paper towels also and you're like वो like नहीं खरीदने, and like but when you say oh these are there, if you draw coconut tree on them, like give me 5. That is how Malayalis will react. So I was like, okay, in Bangalore, this guy has opened a
तो वो तो देखना, वो जो बीके है, बीके का सेल्स पिच भी तो बड़ा मस्त होता है। वो आता है, वो देख रहा है, वो स्कैन कर रहा है कि कौन मलयाली है, ओए मलयाली मिल गए, चलो जाके Yeah. इनको सीधा आके सबसे पहले इनको, क्योंकि बिकॉज आई आई अंडरस्टूड दैट कि ये बैंगलोर में चल रहा है, तो बैंगलोर में मलयाली तो कोई समझेगा नहीं, तो इसलिए वो मलयाली में जाके सबको बता रहे हैं कि अरे यहाँ पे ना हॉस्टल बहुत ही बेकार है, यहाँ पे ड्रग्स होगा, फाइट होगा, सब होगा, बगल में ही है, सस्ते में दे रहा हूँ मैं, आ जाओ करके इनको वो मस्त एकदम फंसा के ले गया, अपना सेल्स पिच मार के ले गया, सारे मल्लू बच्चों को एक साथ ही उसने लगा दिया। एंड देन यू सी दैट कि बाद में तेरी जो वो टीचर होती है, जिससे जाके बार बार जो शांतन होता है वो बार बार पूछ रहा है ना कि अरे वो कहाँ Uniform. है, यूनिफॉर्म आया, तो फिर पता चलता वो भी मलयाली है। फिर उसके बाद जो तेरा ईडी आया नया वाला, वो भी मलयाली है। Hmm. तेरा ये जो रंगा है ये भी मलयाली है। Yeah. तो इट्स लाइक कि एट एवरी पॉइंट यू गेट दैट मलयाली कनेक्ट। तो वो इट्स अ रनिंग गैग बेसिकली कि हर जगह इनको वो मल्लू मल्लू ही जाके मिल रहे हैं, कोई ना कोई। Now that we talk about that, I want to. There is something I noticed about Ranga. Um, I made a. There's so many notes, and I have to actually look for that one particular note. अरे अरे I think there is a problem of belonging, that Ranga is constantly being told you don't belong here. Okay, वो मलयाली है ना, और वो बैंगलोर में गैंग बना के बैठा है. So when they are manipulating Ranga कि ओ उन लोग के पास तो, कुट्टी लोग के पास तो लोकल सपोर्ट है, ही एक्चुअली लूजेज इट. अच्छा 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 अच्छा, हाँ लोकल सपोर्ट, आई नो। लोकल सपोर्ट बोलते ही लूजेज इट. दैट इज हिज ट्रिगर. अब लाइक ओके, ये ट्रिगर है, दैट शोज कि रंगा को का एक और इनसिक्योरिटी यहाँ पे है. देयर इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग दैट ही डजंट फील कि वो यहाँ का बंदा है, एंड दे डोंट मेक हिम फील लाइक दैट. सो इट ऑल्सो अ वेरी सॉफ्ट साइड टू हिम. ओके, अगेन आई लव इट. ये बहुत बहुत सारे इससे छोटी छोटी चीज़ें जो यार बहुत मज़ा आ रही थी जब मैंने नोटिस की थी. सेकेंड और थर्ड व्यूइंग में आई वॉज लाइक, the way it is all a character, this is a character driven film, it's a very proper character driven film. Yeah. And let's talk about that climax का fight. We see Ranga get completely unleashed. He's heartbroken over it, and उसमें दिखा रहे हैं कि उसका फाइनली वो विजुअल एक रिप्रेजेंटेशन है दैट उसका एक चीज, उसका जो प्रॉमिस है, दैट प्रॉमिस हैज ब्रोकन. द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ब्रोकन प्रॉमिस इज द ग्लास, उसका जो टूटा हुआ है. Yeah. और उसमें उसका जो आंख है वो दिख रहा है, और वो जो बीबी होता है वो एकदम देख रहा है, और वो जितना भी उसने पूरा वो एंगर अनलीश कर रहा है ना, द एंगर इज नॉट ऑन दीज पीपल, द एंगर इज ऑन दोस 3 बॉयज. सबसे ज्यादा बीबी, वो बीबी को ही देख रहा है, ही इज नॉट इवन लुकिंग एट द अदर 2. क्योंकि बीबी भी बार बार ही ऐसा होता है ना, वो बार बार ही उसको बता रहा होता है कि जब वो हॉस्टल पे छोड़ने आता है तो हॉस्टल वाले पूछते हैं ना कौन है, वो बोलता है कि अरे ये तो मेरा भाई है. तो वो उसको देखता है रंगा उसको कि अरे इसने मेरे को भाई बोला. सो दैट इज वॉट मूव्स हिम. एंड देन लेटर व्हेन बीबीज मॉम कॉल्स हिम एंड वो बताता है कि अरे माँ मेरे बारे में तो शायद बताया नहीं होगा, बट वो बोलता है कि नहीं अरे बेटा आपके बारे में तो, तुम्हारे बारे में तो बहुत बताया. एंड देन यू सी हाउ द रिएक्शन विच फाफा गिव्स, उसमें समझ में आता है कि ओके फक, ही इज सो मूव्ड बाय इट. आई मीन स्मॉल क्वर्क है, छोटा सा एक क्वर्क है, और वो इसमें एकदम से निकल के आ गया कि वो ही सो मूव्ड बाय इट, विच इज वाई ही इज लाइक कि अरे इनके लिए तो कुछ भी करो, इनके लिए तो ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे इनके लिए मैं हमेशा. It's a small thing again. So when he, वो जो स्कूल का फाइट होता है ना, कुट्टी और उसके गैंग के बीच में, आफ्टर सो सबको वार्निंग दे देता है कि ये मेरे बच्चे हैं, इनको कुछ नहीं करना है, ठीक है. इन अनदर सीन यू कैन सी कि वो स्कूल के बाहर पोस्टर लगा के गया है, और देर इज अ पोर्ट्रेट ऑफ हिम, एंड नीचे तीनों के फोटो है कुट्टी का. कि इन जस्ट इफ यू डू नॉट रिमेम्बर, ये 3 है. ठीक है. अगेन ही सो डेडिकेटेड यार. हाँ, और उसके बाद जब उसको लगता है कि वो तीनों वो मिसिंग है, तो वो वापस जाके कुट्टी के गैंग को ही पकड़ के फेल रहा होता है. हाँ. ये सही है यार, ये सही है. मैंने कहा ये बेचारे कितने पिटे हैं. दिस इज व्हाई दे आर इडियट्स एज वेल. दे डिडंट थिंक दिस वुड हैपन. आई वाज लाइक ए ही होगा. आई वाज लाइक तो सो बिकॉज वो जो तेरा नन ऑफ देम अंडरस्टूड तेरा उसका कैरेक्टर, नन ऑफ देम अंडरस्टूड कि रंगा क्या है.
दे थॉट कि बिकॉज ओके इट्स नॉट इवन देयर फॉल्ट, इट्स लाइक जो तेरा जिस तरीके की कहानी भी उसके वो गैंग मेंबर सुना रहे थे ना, इट फेल्ट लाइक कि ये थोड़ा ये लोग ऐसे ही ये फेक लोग हैं. No, BB Nobody understands Ranga realized. to a certain extent. He's the one who suggests कि हाँ उसको जाके समझाएंगे तो समझेगा ना वो. हाँ, but they don't fully understand him, which is Yeah, why yeah, yeah. BB read him completely wrong. उसने बोला होगा ना कि हाँ हम ऑफ करके चले जाएंगे तो वो छोड़ देगा. उसको समझ ही नहीं आया कि वो पागल आदमी है. वो उसका बस चलता तो वो पूरा शहर जला देता, वो पूरा कॉलेज जला देता, वो तो वो कर देता, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. जब आशीष विद्यार्थी उनको रस्टिकेट कर देता है ना, आई वाज लाइक दे विल मुझे लगा था हाँ बिकॉज आशीष विद्यार्थी का तो रोल ही नहीं था, एक ही सीन के लिए आता है. फिर मेरे को लगा था कि नाउ मे बी सेकेंड हाफ विल बी डेडिकेटेड टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू, बट इट वेंट कम्प्लीटली कुछ और ही चला गया. मेरे को लगा ओके, आई मीन इंटरेस्टिंग यू वेंट, आई मीन आई एम नॉट कंप्लेनिंग that they took that route, but मेरे लिए ऐसा था कि okay maybe आशीष विद्यार्थी will play a bigger role. I mean I thought he was going to play the Baman Irani character, Virus. Yeah, but that is what I apparently assumed. did not happen. वो कुछ हुआ ही नहीं. एक सीन के लिए वो आया फिर चला गया, एंड आई थॉट कि मे बी ऐसा होगा कि जो तेरा रंगा है, अरे पता नहीं, it's like that. Okay, I'll just quickly come to the negatives of the movie. One thing which I said was yes, the movie felt too long. The second negative of this movie was, for me, the entire climax did not work that much. That was my biggest negative as well. The resolution feels very easy. No, not the resolution. The resolution I saw a mile away. I thought okay, उसकी मुझे मम्मी का लग ही रहा कॉल था आ कि जाता है हाँ, and मुझे हो यही गया. लग रहा था कि this would have been the resolution, and मुझे ये नहीं लगा था because I was assuming, एक तो जो रेड्डी का कैरेक्टर है ना, जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रेड्डी एंड रंगा, that is half baked. Yes. that doesn't serve any, I mean कुछ नहीं दिखता वो. इवन दो मुझे लग रहा था कि ठीक है बीच में देर इज बबलिंग में, जो बीच में वो जो पूरा कार चेस सीक्वेंस होता है ना मॉल में, जिसमें वो जाता है, वो दो नॉर्थ इंडियंस को बचाने के लिए जाता है, फाइटर्स को, तो उसमें तो बताता ही है कि वो रेड्डी के ही आदमी हैं. तो वो समझ में तो आ ही रहा था कि देर हैज बीन अ फॉल आउट बिटवीन द टू, उसकी वजह से ही ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो तो मैं समझ गया था. बट मेरे लिए ऐसा था कि दैट वॉज नॉट इनफ फॉर द क्लाइमैक्टिक बैटल टू हैपन. आई फेल्ट मेरे लिए ऐसा होना चाहिए था कि जैसे मैं वही सोच रहा था कि आशीष विद्यार्थी शुड हैव प्लेड अ मच इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज आई फेल्ट कि सेकेंड हाफ वेयर इट वॉज गोइंग आफ्टर दे काइंड ऑफ बीट कुट्टीज गैंग, जो फाफा, मेरे को ऐसा ही लग रहा था कि नाउ सिंस वॉट दे इंटेंडेड टू डू वॉज ओवर, नाउ दे आर नॉट एबल टू गेट रिड ऑफ रंगा. Because their purpose, the purpose has been served. रंगा का जो पर्पस था वो खत्म हो गया, but now रंगा is so attached, he is not leaving them, which is where the story was also heading. But मेरे लिए ये था कि the crescendo moment should have been the conflict of how they go, and basically they have to study, but these guys are not letting them study. But then फिर वो एग्जाम के लिए क्या है, अल्टीमेटली वो एग्जाम में फेल हो गए, और वो एग्जाम में फेल होके क्या कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, और फिर वो रंगा आके उस डीन को जाके धोने वाला है जो ईडी है. The what you have pointed out, one of the flaws that you pointed out, not the flaws, one of the things that you pointed out, that for me was the second half. For me कि यार ये करना चाहिए था तुमको, instead of the path you took. You said that these kids don't understand Ranga. That second half should have been them misunderstanding him, because they do. And then finally coming to terms with, okay, ये रंगा है, okay, not just the climax parts, that should be the slow arc, ठीक है, but that didn't happen. और मुझे ये भी लगा था कि चलो ठीक है, मुझे ये लगा था कि जिस तरीके से वो पूरे फिर वो न्यूज़ में देख के समझ में आता है ना कि ये पागल हो गया है और ये इन्हीं को ढूंढ रहा है, फिर वो एकदम से जाके फ़ोन ऑन करता है तो एकदम से रंगा का कॉल आता है. आई थॉट व्हाट वुड हैव हैपन वाज लाइक BB would have, what he would have done was he would have actually kind of tricked, in order to get out of that situation. What he would have done was, because उसको वो रेड्डी का विजिटिंग कार्ड मिल गया होता है, तो आई थॉट वो क्या कर रहा होगा, वो उसको कॉल करेगा
और वो रेड्डी को बोलेगा मेरे को तेरे से मीटिंग चाहिए, और वो रेड्डी के अड्डे में जाएगा और फिर वो रंगा को कॉल करेगा, बोलेगा भैया भैया मेरे को रेड्डी ने किडनैप कर लिया, और फिर रंगा को रेड्डी के अड्डे पे बुला के फिर वहां पे वो क्लाइमैक्स फाइट होगा. मुझे लगा वैसा कुछ करेंगे ये. Okay. Hmm. Like it's like it would have been like Ranga. I thought Ranga will never come to know that these three kids had kind of used him. I thought the innocence जो है ना, because Ranga is very innocent. Yeah. तो मुझे लग रहा था कि the makers might have preserved Ranga's innocence, which to an extent they did, because ultimately क्या होता है, वो उसकी माँ का कहना सुनने लग जाता है बीबी वो बोलती है ना कि अरे उसका एग्जाम्स आ रहा है, उसको पढ़ना है, तो फिर वो बोलता है कि अब देखो पढ़ना है, तो फिर वो बोलता है ना कि अगर तुमने पढ़ाई नहीं करी तो मैं धोऊंगा पकड़ के, तो फिर वो सबको पकड़ के वो धो रहे होते हैं. सो दैट इज वेयर दे वेंट, एंड यू सी दैट ओके रंगा हैज कंप्लीटली वेंट द ऑपोजिट डायरेक्शन. इन फर्स्ट ही वाज क्लैड इन वाइट, नाउ ही इज क्लैड इन ब्लैक. उसने पूरा अपना लुक उल्टा कर लिया. Yeah, because he End gives up में. his identity, na. Reddy. Yeah. Finally, he gives up his identity. He's like, fine, I don't need this. I'll change it. तो फिर black बट में आ जाता है. रेड्डी को तो उसने मार भी दिया, अब क्या फायदा है. हाँ. तो वो एक था. एंड ओके वन मोर थिंग अबाउट दैट, देन वील मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन. फिर से नेक्स्ट वील टॉक अबाउट अंबन. उससे पहले ये था कि दे पे ओमाज टू शाइनिंग. यू सीन शाइनिंग? I have. Where do they give homage? जब तेरा वो हैक कर रहा होता है दरवाजे को, Oh. वो जैसे Have they here's though? Johnny, Have they? here's वही तो. Okay, वो बाहर ऐसे से ही ऐसे तो होता आता है भी है वो. ना, देखता है वो ऐसे. I didn't see that. I thought of it. जिस तरीके से वो दरवाजा ऐसे वो कुल्हाड़ी से काट रहा होता है, फिर फाइनली उसका है ना कि उसको वो कॉल आ जाता है, तो फिर वो बट वो एक्चुअली में दे डिड नॉट गो फुल शाइनिंग, बट इट फेल्ट वेरी शाइनिंग इस्क, कि वो अगर वो मतलब वो चिल्ला रहा उसी तरीके से चिल्ला रहा होता पागलों की तरह. शॉट भी उस तरीके से फ्रेम्ड होता है कि वो उस छेद के थ्रू ही बीबी को देख रहा है. हाँ. So I feel कि this is kind of an homage. This is, I said, it's an homage to Shining. It's not a rip off of Shining. और वो मस्त डायलॉग होता है, वो उसको रो रहा होता है ना, ये शांतन खड़ा होता है कि अन्ना सॉरी अन्ना, अरे तेरी तो सॉरी बोलता है साले का, कुल्हाड़ी फेंक के मारता है, फिर वो भाग के अंदर जाता है, बोलता है कि मेरे को रुला के तो सॉरी बोल रहा, रुक तेरे को काटता हूँ करके, फिर वो आके वो कर रहा होता है ना, वो भी सही एकदम अच्छी कॉमेडी थी वो. I want to bring some technicality into it, because there's some things I noticed as to why all these scenes feel so real, and the staging is done so well. I want to now share my screen. There's some screenshots that I took. Okay, now look at the depth of. There are layers to it. The first thing you see is the mother. Okay, पीछे उन लोग को रखा है, ठीक है, और पीछे थर्ड लेयर भी है जहाँ पे वो लोग घूम रहे हैं. एंड एट फर्स्ट आई वाज लाइक ओके दिस इज अ गुड थिंग, बट देन आई केप्ट नोटिसिंग कि ये बार बार हो रहा है. ठीक है, आई मूव टू द सेकंड पिक्चर. ये दिख रहा है. Okay, so yeah, okay. So there are layers here Actually- as well. पीछे लोग और भी है, दिख रहे होंगे तेरे को. So this shot is a good example of leading lines. क्या? So उससे तेरा depth add हुआ है, and both of these shots have been taken using a wide angle lens, which is why you are seeing a lot of depth. हाँ. तो तेरा पीछे का पूरा स्ट्रीट तक दिखा है, और आई डोंट नो वेदर दे हैड कंट्रोल ओवर इट और नॉट पीछे बैकग्राउंड में, बट अगर उनके पास कंट्रोल था तो उन लोगों ने पीछे की भी वो लाइट्स वगैरह ऑन कराई हैं उस पीछे वाली बिल्डिंग की. I genuinely think कि ये intentionally किया गया है. I will move on to the next one. Look at this shot. Okay, पीछे देख, हाँ. उनको genuinely बिठाया गया है. This is not natural. ठीक है, वो पीछे जानबूझ के बिठाया है टू शो लेयर्स कि हाँ ऐसे ही होता है. एंड इवन द नेक्स्ट शॉट, इवन द फायर हैज लेयर्स टू इट. पीछे भी है फायर, अलग अलग. देयर इज डेप्थ टू द फायर एज वेल. दिस इज वेरी इंटेंशनली डन. And this, okay, yeah, so
we will talk about this Damsharad scene. I actually wanted to talk about this girl, this ये जो होती है ना, ये जो Yeah, वर्कर this होती है, is एस वर्कर yeah. हो, this woman. So ये हंस रही होती है and she is actually kind of, वो बोलता भी है, जो तेरा शांतन है वो बोलता है ना कि अरे स्ट्रेंजर के साथ तो मैं नहीं कर सकता, अगर किसी के साथ मैं रिलेशनशिप में होता तो मैं कर लेता. सो आई थॉट बाय द एंड ऑफ दिस डमशराड्स इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, बिकॉज दे वुड हैव बॉन्डेड एंड देन फाइनली समथिंग वुड हैव हैपेंड एंड टेक्निकली समथिंग हैपेंस. Yeah, she ends up sleeping in the same bed. Yeah, that- she ends up yeah. sleeping, but nothing actually happens between them. Yeah, yeah. सो आई एक्चुअली थॉट कि वो जो ट्रॉमा है ना उसके चक्कर में इन दोनों के बीच में हो जाएगा, मोमेंट बन जाएगा. बट वो हुआ नहीं. बट या इट बिकेम मच मोर होलसम रादर देन समथिंग इंटीमेट. Yeah, yeah. एंड इस ओके, फनी थिंग आई नोटिस, ये जो सोफा है ये भी लाल है. I mean, orange Very थोड़ा interesting. orangish लाल है. कलर में भी, कलर वाली बात आ गई. चलो अब मैं कलर वाली बात कर रहा हूँ. तो Sure, go ahead, ये जो कलर है, ये जो इन लोगों ने कलर को भी एसोसिएट करके रखा है इसके थीम के साथ. वेरी बेसिक बट इट इज ऑल्सो समथिंग वेरी प्रोमिनेंट. ओके, लुक इन द बैकग्राउंड पीछे वो बैनर लगा हुआ, उसमें भी वो ब्लू और रेड है. Blue और red है. उसी की शक्ल बनी हुई है. वो ब्लू और रेड है, तो वेरी वेरी प्रोमिनेंट. और ये पीछे, इसके पीछे भी जो बीबी के पीछे एक बंदा बैठा है, वो उसने लाल टी शर्ट पहना है शायद. जूम इन हाँ, और करियो. ये साइड ब्लू है. ये साइड ब्लू है, वही लाल और ब्लू अगेन. Yeah. ओके, ब्लू थोड़ा रेडिश वो है. एंड या वेरी मच और तो वॉलपेपर देख यहाँ. वॉलपेपर ग्रीन Green है. या ग्रीन. ओके, सो अरे यार एक बात बताओ, कोई और कलर ही ले लेते. आरजीबी लेना था क्या तुमको? You know what I'm thinking right now? I was like, this guy is wearing so much gold, ठीक है, हाँ. and he has so much money, but खरीदा तो साले ने ओल्ड मंकी. Old monk, so that goes to show that he doesn't care about the money. Yeah, he doesn't care about it. Yeah, that's such a good thing. So look at this, red, blue, इसमें भी red, This red, blue. blue, but इसमें yellow है. और green, ये रहा green, ये पत्ते green. नहीं, there is yellow as well in the film, by the way. और इसमें अरे ये देखिए Oh, yes. लाल blue, very consciously done. और ये सफेद है. और इधर ये आंटी जी, ये भी थोड़ी लाल में ही है. लाल और ब्लू देख, लाल और ब्लू ऑलमोस्ट डिफरेंट शेड्स ऑफ रेड, बट ये लाल और ब्लू. कुछ कंफर्ट जोन है यार जो डायरेक्टर है उसका. और ये देख, पैनफ्लेट भी लाल और ब्लू. ओ भाई साहब. और देख इसमें भी देख लाल, ब्लू, ग्रीन. पीछे वो जो आंटी है ऊपर भी है, ये भी वेरी कॉन्शियसली डन. दिस इज सो आई मीन अपैरेंट यार. सबको लाल पहना है. देख इधर लाल. ओ भाई साहब, बहुत ज्यादा स्टेजिंग करी है इन लोगों ने, डेलिबरेट स्टेजिंग. ये लाल बैग, ए भगवान. और इसका छोटी नीला, बैग भाई तू हाथ में पकड़ के ले आता क्या जा रहा है. ये देख इसका नीला इसकी बैग blue और bag है. इसकी नीली फाइल. फोल्डर है. हाँ, बहुत कॉन्शियसली इन लोगों ने किया है. बहुत कॉन्शियसली इन लोगों ने कलर्स, इन लोगों ने देख इधर येलो फ्रेम में येलो भी घुसा दिया. ये भी है रे भाई साहब, ये भी वही है. ये पूरा नीला ब्लू में है. हाँ, इधर भी पीछे जो ओ भाई साहब, सोच ये जो कल्चरल फेस्ट करके लिखा है, इसमें भी इन लोगों ने कलर पूरा वही उन्हीं के साथ खेला है. Okay, this is where our theory will come true, whether these guys did it deliberately or not, because this feels like a real location. But इधर भी वो कलर आ रहा है देख, नीला लाल. ये नीला पे ये दीवार इसकी, और ये लाल है. ये और आंटी इधर ने भी लाल है. ब्लू साड़ी पहनी है, रेड बैग है उनके पास. हाँ, रेड बैग है. वही ये बस ये आंटी थोड़ी ऑफ लग रही हैं, बट इसमें भी थोड़ा रेडिश ही लग रहा है. ये पूरा ब्लू. ओ भाई साहब, बाइक, लाल बाइक. ओ बी के हॉस्टल भी देख, ग्रीन और हाँ, रेड एंड ग्रीन. कोकोनट ट्री, रेड एंड ग्रीन. कोकोनट ट्री है. हाँ, इसका भी देख, इसका भी वही है, लाल, ब्लू and green और bag. पीछे ग्रीन. और ये सराउंडेड इन येलो लाइट. येलो लाइट. हाँ, बेडशीट भी देख, इसका बेडशीट. हाँ, बेडशीट पीछे येलो है देख वहाँ पे टेबल. पीछे येलो और ऊपर उसका बैग ग्रीन है. हाँ, तो यही वो. अच्छा, इसमें देख रहा है, दिस इज वेयर आई टुक द स्क्रीनशॉट. येलो कपड़ा. वहाँ ब्लू कच्चा लगता है. नीली चड्डी
और नो फेस मास्क और नो एंट्री ब्लू और रेड में लिखा है. Yeah. ओ भाई साहब, I think कॉन्शियसली I never expected blue RGB to be like a proper segment. ओके. अरे अंबन का देखना था, अंबन का देखा ही Yeah, नहीं. let's talk about Amban now. I talked about my favorite scene with Amban, where we felt it was the most emotional scene in the film. We see the love Amban has for Ranga. लेट्स जस्ट गो देयर. हाँ, ये यही वो सीन है, यही वो सीन है. Yes. Bro, open the He door. sits. He has to first sit. वो पहले बैठता है, हाँ. फिर वो बोलता है. तो अभी And he's यहीं blocking पे आया. Amban completely. Look at it. When I need someone to talk to, there's not a soul around. Everyone's with me only for booze and money. Yeah, यही है. इसी में इसने बता ही Stands दिया. up and- So this is Ayan Mukherjee using Ayan Mukherjee's dialogue, but with proper impact. Yes. At the right time is what I'm saying. At the right time, exactly. right time. You can do that at the right time because तुमने पहले सब कुछ विजुअली सेटअप कर दिया बहुत अच्छी तरह से. सो अभी वो इस टाइम पे अगर वल्नरेबल होके अपना बता रहा है ना, वो उस इमोशन में अगर वो बता भी रहा है अपने अंदर की बात, इट कम्स आउट वेल बिकॉज पूरी मूवी में उसने अपने आप को छुपा के रखा है. Yeah. Who's with Ranga out of love? And then he gets up and you see Amban. Oh my God. वो and it's like इसमें okay, इसमें you also see, okay, look at this framing. Who's with Amban out of love? Who's with Amban out of love? This guy is literally pointing to him. Yeah. This looks like a finger pointing to him. कि ये इधर खड़ा हुआ है. And the Very, way very Amban is brilliant. standing is also like, it's amazing. और फिर वो है Yeah. ना अगेन इट्स लाइक ये देख ऐसा दिखाते हैं ना कि सो देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन बिटवीन तेरा अंबन एंड रंगा. Yeah. सो this shot actually conveys to me that the question which Ranga asks कि कौन मेरे साथ प्यार के लिए खड़ा है, he himself doesn't realize कि अंबन loves him. Yeah, this shot is a visual representation of how clear it is and how still he's not able to see it. How Ranga is not able to see it. हाँ, You कि can see it, रंगा- but Ranga isn't able कि- to because Ranga has his back towards Amban. Okay, and then without even looking back, he just walks and goes and walks away. If you draw parallels with how he meets BB, he actually turns. BB को हाँ lighter देके he turns. हाँ ठीक he है. turns. So again, these are all such great scenes. This is pure cinema, यार. Pure cinema. Amban is also a storyteller for हाँ, वो तो है. Ranga. Right? Ranga है. always like ये वाली कहानी बता, इसको ये वाली कहानी बता, और उसको सब रटा हुआ है. You can see कि किस पैशन के साथ अम्बन बोल रहा है वो कहानियाँ. ओके, उसमें भी प्यार झलकता है, बट रंगा इज स्टिल नॉट एबल टू सी इट. रंगा वही ना, दैट इज कॉल्ड आयरनी कि भाई एक ही बंदा है तेरे को चाहिए, वो है तेरे पास पहले से, और उसको तू इग्नोर करके बाकी हर बंदे में ढूंढ रहा है तू. So that is this shot, and which is why I said कि I wanted to talk about this कि वो ना बैरियर है बीच में, वो पूरा उनके बीच में वो बैरियर लगा हुआ है, वो विजुअली कन्वे होता है एकदम से. और फिर उसके बाद एक और सीन इसके आगे ही होता है जब वो चीखता है कि बोलता है ना, ए तुमको पता है मैंने क्यों बुलाया तुम सबको, और तब तेरा जो अंबन होता है ना वो एकदम पीछे खड़ा होता है और फिर भाग के आता है वो. वेट आई विल टेल यू. फेंक के मारा भाग एकदम से, साले डैम यूर सॉरी इधर आ. यही वो शाइनिंग वाला है. तो इसके बाद ये इसकी मम्मी का फोन आता है, बात करती हैं. ओह आई रिमेंबर नाउ. ये भी आया ना, ये देखिए वाला सीन. अम्बन दौड़ के आता है. हाँ. अंबन एक, क्योंकि इसमें भी दिखाते हैं कि अंबन एकदम पीछे खड़ा हुआ है, सबसे अलग खड़ा हुआ है. अंबन जैसे अंबन बोला भाग के आया, देख कैसे भाग के आया. In this one scene, Ranga also says कि nobody likes me on Instagram either. Okay. हाँ. So when you see the Insta post that he sends, जिसमें वो ऐसे करता है, there's like hardly any likes on it. Okay. हाँ. So that shows it. But then end में I think he actually starts getting likes. हाँ. I actually want to talk about in depth that scene where Fafa is introduced. And okay, so for a scene to be like a bingo perfect scene जो होता है ना, it will end up doing three things.
perfectly. Okay, first there will be a conflict to that scene, that there is something to be achieved, कुछ बीच में आ रहा है. Then there is character development. Okay, you end up doing that. And the third thing is that it is an important thing in the plot. It leads to a different scene afterwards. So if you hit those three, it's scene bingo. We see that they are discussing कि उनको करना क्या है in that line. Okay, bathroom के queue में. Again, the way it is staged is so intelligent, because that cue is a foreshadowing of how they are going to introduce Fazil's character. But they are actually discussing their want of the scene. We need to make friends with the goons and we need to get over this. Yes, that foreshadowing is complete where they zoom out and they show कि उसके पीछे कोई line नहीं है. हाँ. Right, and that is when he turns and he comes back. The conflict here is that we feel that all these three guys will never get any help because they are taking their situation too seriously. Okay. And they end up meeting a guy who matches that intensity in Ranga. Okay, because we feel कि उनका सीन क्या है, because उन लोग को एक्चुअली बहुत मार पड़ी है यार, बहुत खराब तरीके से मार पड़ी है उनको. ओके, बट कोई ऐसा नहीं सोचे, कोई गुंडा ऐसा क्यों सोचेगा, हाँ तुमको मार पड़ी ना, जाओ कोई बात नहीं, रोज का काम है हमारा. राइट. हाँ, बट रंगा इज नॉट दैट पर्सन. रंगा इज द ओनली गुंडा who will actually say, who will be associated with that कि हाँ इनको नहीं मारना चाहिए था. So again मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि अगर जितना उन लोगों ने फ्रेंडशिप भी उसके साथ किया था, फहद फासिल के वो रंगा के साथ, अगर वो फ्रेंडशिप ना भी करते, वो उसी दिन उसको बोलते ना कि इन सीनियर ने मारा, तो वो उसी दिन जाके उन सीनियर्स की कुटाई करता. that is the second thing ticked, which is the character development. Okay, in the same scene they introduce Ranga, they also develop his character, they start developing his character there only. Okay. Yeah. Again, and one thing they've added in the scene, there is a twist in the scene. They are subverting our expectations. We are like, oh, how will BB end up talking to Ranga? Ranga is the one who is like, मैं बात करता हूँ, अरे तेरे को याद है? Okay, again, because protagonist is Ranga only. And also it's like that is the opposite reaction to what they've gotten in every other Yes. instance कि जब भी किसी और गुंडों से बात कर रहे होते हैं, everyone was rejecting them. Like वो पहले सबसे पहले एक गुंडे से बात करते हैं जिसका बिल भरते हैं, फिर वो उससे नंबर मांगने जाते हैं, वो भाग जाता है. फिर नेक्स्ट जो गुंडा होता है वो खुद रोने लग जाता है. Yes. और फिर जो तीसरा होता है वो तो उनको भाव भी नहीं देता, बाउंसर उसको. Yeah, I am going through the same thing right here. या सो जो बाउंसर होता है वो उनको बार बार इधर उधर धकेल रहा होता है. दिस गाय रंगा इज द ओनली वन who gives them the consideration and he's like अरे बैठो आओ करके पूरा उनको एकदम सर पे चढ़ा लेता है वो. So that is the subversion of expectation, and उसी से समझ में आ जाता है कि this character is very interesting, which is why we as an audience are also invested in this character कि हाँ देखना है हमें आगे क्या होगा. Because for me, okay, so एक तो जो तेरा जो अज्जू है ना, अज्जू होता है उसका नाम शायद, The long-haired guy. लॉन्ग हेयर गाय, मेरे लिए ही वॉज लाइक द वही सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर है पूरे मूवी का. वो सेकंड फट्टू कैरेक्टर है. सबसे ज़्यादा फट्टू तो तेरा वो शांतन है. हाँ, वो तो हमेशा ही पहले से रेडी होता है. वो आके बोलते हैं ना सीनियर्स आके कपड़े खोलो, सबसे पहले वो ही खोलता है. Shantan, I feel like Shantan is somebody who has attention span. वो उस टाइम में ही जी रहा है जो उस टाइम इमीडिएटली क्या हो रहा है ना, ही इज रिस्पॉन्डिंग टू दैट. ही हैज़ नथिंग. वो 2 स्टेप आगे सोच ही नहीं पा रहा है ना 2 स्टेप पीछे, वो वहीं पे है. ओके, दैट वाज एविडेंट इन द सेम सीन जहाँ पे दे आर रिकॉलिंग. सो फहद फासिल अपनी स्टोरी सुनवा रहा है अंबन के थ्रू. सो अंबन इज़ लाइक अरे उनको 40 गुना वो कंपनी ने रिटर्न्स दिए, ठीक है. एंड यू कैन सी अज्जू एंड बीबी, दे आर सिटिंग एंड दे आर स्माइलिंग. Shantan is celebrating with everybody else. Okay. So again, वो सीन में शांतन का भी कैरेक्टराइजेशन कर दिया इन लोगों ने कि यार ये होता है. हाँ, अगेन हाँ, जब वो पिट के वापस अपने हॉस्टल आते हैं तो तेरा जो अज्जू होता है वो ऐसे मायूस बैठा होता है, और तो जो तेरा दूसरा होता है बीबी होता है वो भी ऐसे ही मायूस बैठा होता है.
बट तेरा यही शांतनु उछल रहा होता है, बिकॉज उसके लिए तो ऐसा है कि खत्म हो गया, उसके लिए तो सिचुएशन खत्म है, पिट गए, हाँ चलो आगे बढ़ो। वो Yeah. बोलता भी तो है बाद में छत पे जब वो खड़े होते हैं, बोलता भी तो है कि अबे हो गया, सीनियर ने मार दिया, खत्म करना, आगे बढ़ना, यही करता रहेगा क्या। यही दोनों तो डिस्कस कर रहे होते हैं। अज्जू ही है हु पहले बोलता है कि उन्हें हमें मारा, ऐसे कैसे हमें वापस मारना होगा। एंड बीबी इज ऑल्सो इन दैट माइंडसेट कि अरे यार मेरी मम्मी ने तक मेरे को मारा नहीं, इन लोगों ने कैसे मार दिया। तो इन दैट इमोशनल काइंड ऑफ सिचुएशन ही एग्रीज विथ दिस गाय। Yeah, because Shantan is, again I said, Shantan thinks in the moment कि हो Yeah, गया yeah. ना, अब अपने ऐसे जीते हैं. विच वुड हैव बीन द करेक्ट अप्रोच एज वेल। क्योंकि बाकी के जो सबसे पहले पिटता है ना जो बंदा, वो सब तो अपना पढ़ाई कर रहे होते हैं। हाँ. One note that I kept is after the mother asks कि after BB's mother asks Ranga, are you happy, is BB happy? Throughout the film he keeps asking, are you happy, are you happy, are you happy? Ranga keeps asking Yeah. that. Okay. या I think, okay, I don't know if this is happening. उसकी जो माँ है ना, आई थिंक जब कोई उसको पूछता है ना कि मेरे बारे में तो पता भी नहीं होगा आपको, माँ ऐसे ही बोलती है कि हाँ बताया बताया है, ऐसे ही विदाउट इवन एक्चुअली बात की है या नहीं मुझे पता भी नहीं है। नहीं बिकॉज नहीं नहीं शांतन, नहीं, तो उसका एक वो है ना, उसका वो सीन भी तो है जब वो पहली बारी शांतन को इंट्रोड्यूस करता है, बोलता अच्छा हाँ हाँ शांतन बेटा, अच्छा हाँ अरे आप तो वो थे ना, तो इसलिए आई थिंक वही है कि उसने वो उसकी मॉम का कैरेक्टर है वैसा कि हाँ वो वो मतलब सबको ऐसा ही बोलती है वो सबको ऐसा ही बोलती है। सो बिकॉज शी okay, वॉन्ट्स हाँ, कि कोई, बिकॉज शी वॉन्ट्स एवरीवन टू टेक केयर ऑफ हिम। yeah and BB knows this quality which is why he's like हाँ मम्मी चलो ट्रेन में बैठ जाओ आप, चलो चलो चलो। बट वो उसको कितना सीरियसली ले लेता है जो तेरा रंगा है। हाँ. दैट इज अनदर फनी थिंग देन। Yeah, again the screenplay is like superlative यार इसमें पे. एंड देन गोज टू शो कि वो कैरेक्टराइजेशन उसका कितना स्ट्रांग है कि उसको वो प्यार का भूखा है और उसको अंबन नहीं दिखता। अम्बल नहीं दिखता उसको. Yeah, it's Okay, it's almost 4:30 now. 4:30 in the morning. Yeah, so okay, thank you guys for watching. Please like, share and subscribe, and we will come back very soon with Lucky Bhaskar as well, so stay tuned. And we don't worry, we will do all the movies which we put out in the poll. पहले प्रायोरिटी में ये दोनों थे, and then after that we will sit on the other two. And we actually have a list. We take down all your recommendations. So Yeah. we have a list on that. So we will eventually get to all of these films. पोल्स में आएंगे, सारे सारे के हाँ, सारे हाँ. पोल्स में आएंगे। Guess who has not reviewed Avesham? शान, ऑफ कोर्स, उसकी औकात ही नहीं है। वो तारीफ निकलेगी ही नहीं बाहर उससे. प्रतीक बोराड़े ने किया रिव्यू। उसको तो अच्छी लगती है प्रतीक साउथ ने की फिल्म्स किया। यार. बट ही इज वो भी नॉट है। आउटराइटली सेड दैट इट इज अ ग्रेट फिल्म. ही इज लाइक हाँ अच्छी लगी मुझे, एंटरटेनिंग थी बस. दैट इज व्हाट ही सेड आई थिंक. हाँ, तो क्योंकि उसको क्या है, उसको आइडियोलॉजी मिला नहीं होगा इसमें कुछ, तो वही देखना है मुझे। सो लेट्स चेक आउट सम रिव्यूज बाद में, अभी तो नहीं, अभी तो बिल्कुल हालत आई विल नहीं है कांटेक्ट यू. अभी तो आराम करना है. हाँ, अभी वही है, ठीक है, तो मेरे को बाद में सब भेज दे। ओके, लेट्स रैप इट अप, आई थिंक इनफ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।